Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today our topic is static studies, static studies, assumption and approaches. What is assumptions and approaches? Today, purely military definition of static study have virtually disappeared because study today is an employment of value system through process and ideas which spread the spectrum of war and peace. Politics and economics, culture and psychology, yes, it still remain a means towards an end of peace and mutually beneficial existence. The entire industry of thinking and studies is today geared towards maintenance peace, a Herculean task given the complexity of human society today. It is not only complex in different stores, but the complexity also runs with the store itself. The military or defense system will remain the core. However, the work of strategists today is to how to, when, and how much to apply are more importantly not military coercive. Though it is more of thought focus than a discipline in itself. Static studies can loosely be said to have the following assumptions. अब हम बात करते हैं जी assumptions की. What are the assumption and approaches? तो बात यह है जी कि आज के दौर में जो स्टैटिक स्टडीज़ के जो सिंपल जो मखसूस मैनी है कि ये सिर्फ मिलिट्री के लिए अप्लाई होता है, तो अब इसके मैनी चेंज हो चुके हैं. क्या है? Static study is an employment of value system through process and ideas which spread the spectrum of war and peace, politics and economics, culture and psychology. देखें अब इसमें कितनी चीज़ें आ गई. Spread the spectrum of war का spectrum, the peace के दिनों में पॉलिटिक्स में भी है, इकोनॉमिक्स में है, कल्चर एंड इवन के साइकोलॉजी में भी. तो आज के दौर में स्टैटिक स्टडीज़ जो है उसका स्कोप जो है वो बहुत वसी हो चुका है. तो केयरफुली हम जो है ना इसके जो अजम्पशंस हैं उसको इस तरह से बयान कर सकते हैं. सबसे पहले है इसमें जी ये रियलिज़म. व्हाट इज़ रियलिज़म? अ फाउंडिंग फादर और नेबूहर ये एक मुफक्किर है. वो क्या कहता है? अ फाउंडिंग फादर ऑफ द रियलिस्टिक स्कूल ऑफ स्टैटिक स्टडीज स्पीक ऑफ मैंस hardened pride, will to power and brute inheritance as an incentive to the man always being on the border of war. The realists believe that men are inherently destructive, selfish, competitive, and aggressive, and hence giving rise to an international system which is full of uncertainty and disorder. अब ये रियलिज्म क्या है? रियलिज्म ये कह रहा है कि इसके जो फाउंडिंग फादर है आर नेबूहर ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रियलिस्टिक थॉट पर मुबनी है, यानी रियलिज्म के करीब है, हकीकत के करीब है. वो क्या कहता है? वो कहता है man hardened pride. Static studies speaks of man hardened pride, will to power जो पावर चाहता है, and brute inheritance. और उसने जो ना जो इनहेरिट किया है वो क्या है? वहशत. is an incentive to the man always being on the border of war. और इसके अंदर ये जो वहशत पाई जाती है, ये जो जंग का उसके अंदर एक हिलजान पाया जाता है, ये हर वक्त उसे जंग के बॉर्डर पर ले आता है. द रियलिस्टिक बिलीव दैट मैन आर इनहेरेंटली डिस्ट्रक्टिव. रियलिज्म वाले क्या कहते हैं कि इंसान जो है ना बुनियादी तौर पर डिस्ट्रक्टिव है, सेल्फिश है, कॉम्पिटिटिव है एंड एग्रेसिव, एंड हेंस गिविंग राइज टू एन इंटरनेशनल सिस्टम. और ये एक ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम को बना रहा है विच इज़ फुल ऑफ अनसर्टेन एंड डिसऑर्डर, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा है कि जो भरा हुआ है किससे? अनसर्टेनिटी से और
डिसऑर्डर से। तो ये रियलिज्म की थ्योरी क्या कहती है कि इंसान सेल्फिश है, उसके अंदर जो है ना एक प्राउडनेस पाई जाती है, वो दूसरों से ज़्यादा आगे जाना चाहता है, और उसके अंदर ये जो बुराइयां हैं, यानी डिस्ट्रक्टिवनेस भी है, सेल्फिश भी है, वो मुकाबलाबाजी भी करता है, एग्रेसिव भी है। और तो ये क्या कर रहा है, ये इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहा है। इसका दूसरा पॉइंट जो है वो है मॉरल न्यूट्रलिटी, यानी न्यूट्रल से निकला है, न्यूट्रलिटी। A static analyst like a physician cannot afford to have an emotional bonding onto the subject, and hence is accused of being morally either neutral or actually instigate war, just because he studies, analyzes and details the means and ways of wars, does not really say that he glorified almost all strategic recommended way of maintaining peace moral। अब ये क्या है कि इसकी दूसरा जो हकीकत है, वो इसकी दूसरा जो मफरूज़ा है वो ये है कि मॉरल न्यूट्रलिटी, यानी मॉरली तौर पर स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, जो स्टैटिक स्टडी बनाते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं स्टैटिक स्टडी बनाने वाले, मॉरली जो है ना उनको क्या होना चाहिए, उनको न्यूट्रल होना चाहिए। अगर वो न्यूट्रल नहीं होंगे, यानी वो वन साइडेड चलेंगे, न्यूट्रल नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, फिर अनसिक्योर्ड हो जाएगी। जितनी भी स्टैटिक स्टडी है जो बनाएंगे वो एक तरफा होगी। ऐसा नहीं होता। कहते हैं जैसे एक डॉक्टर होता है, जैसे एक फिजिशियन होता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इमोशनल हो जाए, हकायक को मद्देनज़र रखता है। वो मरीज़ के साथ जो है ना उसका ताल्लुक कोई जज्बाती नहीं होता, बल्कि वो एक खिदमत के जज्बे, सेम इसी तरह से वो कहते हैं जी जो स्ट्रेटजिस्ट है वो भी ऐसे ही काम करता है। उसे उसे जो है ना वो एक्चुअली वो क्या होता है, वो उसे जो है ना न्यूट्रल रहना पड़ता है। आम तौर पर ये समझा जाता है कि स्ट्रेटजिस्ट जो है वो वार को इंस्टिगेट करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, बल्कि जब भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो उसका असल मकसद क्या होता है, उसका असल मकसद ये होता है कि पीस को कायम किया जाए। पीस किस तरह से कायम किया जाए। उसके बाद है पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी से क्या मुराद है? विद इन दिस फ्रेमवर्क, इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल वी सी वेरियस कंसेप्ट्स। तो अब पीस और सिक्योरिटी को कायम करने के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए मुख्तलिफ कंसेप्ट मौजूद है कि स्ट्रेटजिस्ट जो है ना हमेशा इन कंसेप्ट पर काम करते रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं कि दुनिया के अंदर पीस और सिक्योरिटी कायम हो। उसके लिए वो क्या तरीके इख्तियार करें? डेटरेंस। सबसे पहला जो है ना उसके लिए तरीका क्या है? डेटरेंस का। ये डेटरेंस क्या है? is a theory that peace and security can be promoted by threatening potential enemies with unacceptable revenge damage। यानी इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये कहा जाता है दुश्मन को कि देखो अगर तुमने हम पर हमला किया तो हमारे पास भी सलाहियत है, हम तुम्हें तबाह कर सकते हैं। सेम जिस तरह से कि कहा जाता है कि जब इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने लगा, इंडिया के पास एटम बम था, इंडिया एटम बम का तजर्बा कर चुका था, पाकिस्तान के पास भी उस वक्त एटम बम मौजूद था। तो कहा जाता है कि उस वक्त इंडिया को ये पैगाम पहुंचाया गया, ये मालूमात लीक कर दी गई कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम मौजूद है, अगर तुमने ये जंग लड़ी तो ये जंग तुम्हें महंगी पड़ेगी। ये क्या था? डेटरेंस थ्योरी थी कि जो कुछ आपके पास है वो हमारे पास भी है, हम आपको रोकने की सलाहियत रखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है जी डिसआर्मामेंट। ये डिसआर्मामेंट से क्या मुराद है? डिसआर्मामेंट से ये मुराद है, says that peace and security can be achieved by reducing or abolishing
WMDs, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस, यानी जितने भी मास डिस्ट्रक्शंस के वेपन हैं उनको कम किया जाए, उनको कम करके हम दुनिया के अंदर पीस और सिक्योरिटी कायम कर सकते हैं। उसके बाद सी जो है वो है आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल प्रेफर्स टू मैनेज द एग्जिस्टिंग वेपनरी स्किलफुली, यानी अब डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल में फ़र्क है कि एटम बम तो मौजूद है, लेकिन उसको चलाना कैसे है, क्या चलाना है या नहीं चलाना। तो ये क्या है, ये यानी आर्म्स जो है, जो आपके पास असला है, जो आप मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स हैं, उसको उस पर आपने कंट्रोल किस तरह से करना है, उसको किस तरह से आपने कायम रखना है। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं पीस एंड सिक्योरिटी में, कि जो इसकी जो स्टैटिक स्टडी की एजम्पशंस हैं उनमें पीस और सिक्योरिटी को किस तरह से कायम किया जाता है। उसके बाद है जी लिमिटेड वार से क्या मुराद है, कि ये भी एक थ्योरी है, इज अ थ्योरी दैट पीस एंड सिक्योरिटी कैन बी इंश्योर्ड बाय यूजिंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज ड्यूरिंग एनी कन्फ्लिक्ट। किसी भी कन्फ्लिक्ट के दौरान जो जंग है, किसी भी कन्फ्लिक्ट उसकी तरह ना एक महदूद जंग कर ली जाए, महदूद बॉर्डर पर महदूद जंग कर ली जाए, और जो जो कन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, उसको बड़ी जो है ना यानी कम तबाही के ज़रिए उसे कंट्रोल कर दिया जाए। लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी ड्यूरिंग एनी कन्फ्लिक्ट, यानी किसी भी कन्फ्लिक्ट के दौरान जो मिलिट्री का कम से कम इस्तेमाल है उसके ज़रिए पीस कायम कर ली जाए। उसके बाद है जी क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है, इज अबाउट डेवलपिंग टेक्निक्स फॉर हैंडलिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट के ज़रिए दुनिया के अंदर ये एक टेक्निक है, ये एक तरीका है फॉर हैंडलिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेशनल यानी हुकूमती जो रियासत के अंदर के जो मसाइल हैं, और जो बाहर के मसाइल हैं, जो इंटरनेशनल क्राइसिस है, उनको किस तरह से हल किया जाए, निगोशिएशंस के ज़रिए किया जाए, एक दूसरे के साथ बातचीत की जाए, टेबल टॉक किया जाए। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्राइसिस। दुनिया के अंदर जो भी क्राइसिस आते हैं उनको सोच और समझ कर स्ट्रेटजिस्ट जो भी होते हैं वो उस पर गौर व फिक्र करते हैं। अगर गौर व फिक्र ना करें, अगर उसको मैनेज ना करें, तो शायद अब तक दुनिया कई मरतबा तबाह हो चुकी है। उसके बाद हमारा चौथा फोर्थ assumption है कोल्ड वार। द years of cold war were quite instrumental in purposeful shaping of ideas of the scholars and strategists today. The international politics divided into blocks went from being straightforward to complex equation during this time. Very slowly the world is getting over the hangover of the Cold War. However, we are still long way to go before the shadow can be shaken off and we get into different sets of equation for our स्टैटिक थ्योरीज। कोल्ड वार का जो दौर था, ये कोल्ड वार का दौर ऐसा दौर था कि जिसमें दुनिया बाइपोलर थी, दो पोलर्स में तकसीम थी। एक तरफ रशियन पुलाक था, एक तरफ अमेरिकन पुलाक था। दोनों मुल्क के दरमियान कोल्ड वार जारी थी। ये कोल्ड वार जो है, इसको कोल्ड वार क्यों कहा जाता है, कि ये खामोश जंग थी। इसमें अलाइज जो थे दोनों के, वहाँ पर वो लड़ते थे, लेकिन बराह रास्त ये कभी भी किसी जंग में बराह रास्त इनकी जंग नहीं हुई। बाज़ को आज यूँ महसूस होता था कि जैसे अब इनके दरमियान जंग हो जाएगी, अब जंग हो जाएगी। लेकिन स्ट्रेटजिस्ट ने इस कोल्ड वार में भी अपनी स्ट्रेटजी को काबू में रखा, और उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई बग़ैर प्रूफ और बग़ैर सबूतों के। कभी किसी ने कोई ऐसा एक्शन नहीं किया। तो ये कोल्ड वार का दौर ख़त्म हो चुका, कोल्ड वार ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक कहते हैं जी उसके जो असरात हैं वो बाकी हैं। और स्ट्रेटजिस्ट जो है वो वी गेट इनटू डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्वेशन फॉर आवर स्टेट। तो अभी तक जो हमारी स्ट्रेटजिस्ट है वो उस दौर से निकल नहीं पा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता इसके असरात जो है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद है जी लास्ट वन,
वो है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी क्या है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इट स्टिल रिमेन्स मीन्स इन अचीविंग गोल दो इट साउंड्स एंड फील्स पिंचिंग, rationality still remains one of the elusive method means in achieving any static goal. As Hadley Bull commented, the decisions of government on matters of peace and war do not always reflect careful weighing of long-range consideration or a mastery of course of events. Government appears to stumble upon grouping and half blind to preoccupied with surviving for day to day, even to perceive where they are heading, let alone steer away from it. This is largely true. रैशनैलिटी से क्या मुराद है कि स्ट्रेटजिस्ट जो है वो हमेशा रैशनल बुनियादों पर, अकली बुनियादों पर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इरेशनली सोचा हो। वो हमेशा रैशनल बुनियादों पर सोचते हैं, अकली बुनियादों पर फैसला करते हैं। ज़मीनी और हकीकी ग्राउंड्स, जो ज़मीनी हकायक होते हैं और रियल ग्राउंड्स होते हैं, उनकी बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। कभी भी जज्बाती फैसला नहीं किया जाता। हमेशा स्ट्रेटेजिस्ट जो है, स्ट्रेटेजी बनाने वाला जो है, वो इस बात को मद्देनज़र रखता है कि हकायक क्या है। तो ये थे हमारे स्टैटिक्स स्टडी के अजम्पशन एंड अप्रोचेस। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो हम आगे चलते हैं और वो है स्कोप ऑफ डिफेंस एंड स्टैटिक स्टडीज़।